Today we will discuss about in the yesterday's class we were discussing about different type of enthalpies. Today again we will discuss about enthalpy of vaporization. So what do you think? What is the meaning of enthalpy of vaporization? As the name suggests, when one mole of a liquid completely changes into vapors, this is basically known as enthalpy of vaporization. So it is the amount of heat required to change one mole of a liquid into vapor. Okay. So what is enthalpy of neutralization? Neutralization means what? Neutralization means when we mix an acid and a base. तो एसिड और बेस मिलके क्या बनाते हैं? सोल्ट प्लस वाटर. So that process is known as what? Neutralization process. So amount of heat released when 1 gram of acid react with 1 gram of base to give a neutralized product is known as enthalpy of neutralization. Enthalpy of neutralization of a strong acid and strong base is always constant. Like say we talk of an example of a strong acid and strong base. Like if I'm saying that I'm having sodium HCl and NaOH. HCl and NaOH are two strong acid and strong base. These will give you a salt. That salt is known as sodium chloride plus water. So enthalpy of neutralization of strong acid and weak acid और वीक बेस आर ऑलवेज लेस देन 57.1. अगर दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, दोनों ही स्ट्रॉन्ग है तो 57.1 रहेगी. अगर दोनों में से एक वीक है तो आपके पास 57.1 से कम रहेगी. तो हीट जो है वो आयनाइजेशन ऑफ वीक एसिड और वीक बेस के लिए ज़्यादा चाहिए. उसको हम एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन ऑफ वीक एसिड और वीक बेस बोलते हैं. आयनाइजेशन का मतलब क्या होता है? आयनाइजेशन मीन्स व्हेन वी और आयनाइजिंग अ कंपाउंड. सो वो कैसे करते हैं हम? जिस टाइम हम किसी पर्टिकुलर सॉलिड को, जैसे अगर हमारे पास या फिर लिक्विड जो भी है, जो जैसे HCl है, एसिड या बेस है, उन पर्टिकुलर एसिड या बेस को अगर वाटर में एडिशन करते हैं तो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ions. Like if HCl is there then H plus Cl negative, if NaOH is there then Na positive OH negative. So this is known as ionization process. So ionization process means what? There is formation of ions when we put it the electrolyte. Electrolyte means जो ionize हो जाते हैं. तो अगर हम किसी पर्टिकुलर सॉलिड को या लिक्विड को जो उस अपने आयंस में ब्रेक डाउन हो जाता है उसमें ब्रेक डाउन करते हैं तो उसके लिए जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है तो उसे आप एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन बोलते हैं. और न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या है कि आपने एक एसिड और एक बेस को मिलाया तो न्यूट्रल हो गया आपका सॉल्यूशन. और न्यूट्रल होने से जितना अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हुई उसे आप एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बोलोगे. सेकेंड इज एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन. सो एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन क्या होता है? एंथैल्पी चेंज व्हेन वन मोल ऑफ ए सब्सटेंस अंडरगो ट्रांजिशन फ्रॉम वन एलोट्रोपिक फॉर्म टू अनदर. मीन्स व्हाट? व्हेन वी टॉक ऑफ particular substance, and that substance can change from one allotropic form to another form. Like if I'm saying that I have a carbon and the carbon can exist in more than one allotropic form like graphite, diamond, fullerene, graphene. Apart from this there is C60 and C80, different type of other allotropes are there. So these allotropes can be interchanged. अब एक एलोट्रोपिक फॉर्म को दूसरी एलोट्रोपिक फॉर्म में चेंज करने से जितना अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होते हैं उसे एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन बोलते हैं. एटमाइजेशन क्या होता है? एटमाइजेशन का मतलब होता है भाई जिस टाइम मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होके क्या बनाते हैं? एटम्स बनाते हैं. सो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड व्हेन वन मोल ऑफ ए मॉलिक्यूल्स break down into atoms. Okay, when one mole of an molecules break down into atom, that is known as enthalpy of atomization. Now next is if we talk of enthalpy of dilution. Dilution means what? Dilution means when we have a solution, if the solute amount is higher and if I add more solvent to a solution, that is the dilution. So enthalpy change when one mole of a substance diluted from one concentrated form to another form. Means what? कंसनट्रेशन हायर है आपके पास. से फॉर एग्जांपल आपने 2 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ml पानी में मिलाया, उसके अंदर आपने एक बार 100 ml में मिलाया, उसी सेम क्वांटिटी को 200 ml में 500 ml में मिलाया, तो उसमें जो एंथैल्पी रिलीज होती है तो उसे हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन. नेक्स्ट इज एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन. सब्लिमेशन इज अ प्रोसेस when one mole of a solid substance sublimes. Sublimation क्या होता है? It's a process of conversion of solid to gas. उसमें लिक्विड चेंजेस नहीं होते. जैसे अगर आप बात करते हैं दैट इफ़ यू टॉक ऑफ
sublimation process of naphthalene bonds or camphor bonds. Sublimation is a process in which solid changes into gaseous itself. So amount of heat required when 1 mole of a substance or solid substance changes into gas. Lattice enthalpy is an important topic here. Lattice means what? Lattice means solid substance formation. जिस टाइम आयनिक कंपाउंड डिसोसिएट होता है अपने आयंस में, उसे हम बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी. जैसे अगर मैं बात करता हूँ सोडियम क्लोराइड की, तो सोडियम क्लोराइड सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में चेंज हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी. सो इट इज़ एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड डिसोसिएट इनटू आयंस इन अ गैसियस स्टेट. ओके, next is Hess law. This law is very important because there is a question asked about Hess law in most of the exams. So Hess's law हमें क्या बताता है? Hess's law हमें बताता है कि आपके कितने भी प्रोसेस हो, कितने भी स्टेप्स में हो जाए. जैसे मैं बात करता हूँ कि मेरे पास एक बोल है और मैंने एक रो में 4 स्टूडेंट को खड़ा कर रखा है, एक रो में 2-3 स्टूडेंट को खड़ा कर रखा है, और मैंने एक्सट्रीम एंड के बॉल को पहुंचाना है, तो एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे बच्चे में पहुंच जाएगी, और सेकंड वे में एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे में जाएगी. ऐसे ही हमारी किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन में बहुत सारी सब रिएक्शंस हैं, बहुत सारे स्टेप्स हैं रिएक्शन में, एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप. तो जो टोटल एनर्जी रहेगी रिएक्शन की, वो क्या रहेगी? वो सारे जितने भी स्टेप्स हैं, उन सारे स्टेप्स को अगर हम सम कर देंगे, इकट्ठा कर देंगे, तो वो जो एनर्जी है वो हमारी टोटल एनर्जी रहेगी. हीट समेशन, समेशन का मतलब होता है इकट्ठा करना, मतलब मीन्स ऐड करना. टोटल एनर्जी चेंज ऑफ अ रिएक्शन हमेशा सेम रहेगी, चाहे रिएक्शन एक स्टेप में रहे, चाहे रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप करें. मीन्स अगर हमें टोटल एनर्जी निकालनी है तो सारे स्टेप्स को हम क्या करेंगे? ऐड ऑन कर देंगे. सो एप्लीकेशन क्या है ऐसे ला के? हम डेल्टा एच फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, हीट ऑफ ट्रांजिशन निकाल सकते हैं, हीट ऑफ हाइड्रेशन निकाल सकते हैं, और बॉन्ड एनर्जीज कैलकुलेट कर सकते हैं. तो हमारे पास एस्ला में हम डेल्टा एच मतलब इंथैल्पी चेंज, हीट ऑफ ट्रांजिशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन और बॉन्ड एनर्जीज कैलकुलेट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज अदर टाइप ऑफ इंथैल्पीज में क्या क्या होता है? इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन इंथैल्पी हमने पढ़ा अभी. अगर हम एक सोल्यूट को एक सॉल्वेंट में ऐड करते हैं एट ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है उसे हम क्या बोलते हैं? इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन. अब इसको लिए हमें क्या चाहिए? इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट द इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, जैसे अगर मैं बात करता हूँ कि मैंने NaCl को डिजोल्व करा, तो सोडियम आयन गैसियस और क्लोराइड आयन गैसियस. अब अगर हमने लैटिस एंथैल्पी निकालनी, लैटिस एंथैल्पी का क्या मतलब होता है? लैटिस एंथैल्पी मतलब जिस टाइम एक सॉलिड लैटिस गैसियस आयंस में कन्वर्ट होता है, तो एक मोल क्रिस्टल लैटिस को कॉन्स्टिट्यूएंट्स में तोड़ने के लिए जो हीट चाहिए वो लैटिस एंथैल्पी है. सोडियम आयन प्लस वाटर विल गिव यू सोडियम एक्वस. हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज कितनी होगी भाई? डेल्टा एच सॉल्यूशन इज डेल्टा एच लैटिस एंड डेल्टा एच हाइड्रेशन. सो लैटिस एंथैल्पी इज कैलकुलेटेड फॉर डेल्टा एच आर. डेल्टा एच आर क्या होता है? इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. सो अगर हमने इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालनी है इस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए, तो हम क्या करते हैं? हम एक साइकिल बनाते हैं, और उस साइकिल को हम बॉन्ड हेबर्ट साइकिल बोलते हैं, और इसको हम इंथैल्पी चेंज डायग्राम भी बोलते हैं. तो इसमें कौन कौन से स्टेप है? पहला स्टेप है भी डिसोसिएशन ऑफ आयनिक सॉलिड इनटू फ्री आयंस. सॉलिड का फ्री आयंस में डिसोसिएशन, और उसमें जो एनर्जी चाहिए वो लैटिस एंथैल्पी होती है. सेकंड स्टेप है हाइड्रेशन आयंस का, और उसमें जो एंथैल्पी रिलीज होती है वो हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है. और जो आप इसमें देखिए, फर्स्ट स्टेप क्या था आपका? लैटिस एंथैल्पी. सेकंड स्टेप क्या है? हाइड्रेशन एंथैल्पी. तो सोडियम आयन गैसेस, क्लोराइड आयन गैसेस, सोडियम आयन एक्वस, क्लोराइड आयन एक्वस. तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन किसके बराबर रहेगी? जो आपके पास एनर्जी है प्लस इंटरनल एनर्जी प्लस हाफ ऑफ एटमाइजेशन माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माइनस आपका लैटिस एंथैल्पी. अब ये प्लस और माइनस एंथैल्पी कब कहाँ से आया, कैसे आया? एटमाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है अभी? एटमाइजेशन एंथैल्पी का मतलब होता है जिस टाइम जो आपके पास मॉलिक्यूल है वो एटम्स में कन्वर्ट हो. सबसे पहले एटम्स बनेंगे मॉलिक्यूल से, तो एटमाइजेशन एंथैल्पी. फिर हमारे पास वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, तो वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है. अब क्या होगा कि आपके पास लैटिस एंथैल्पी रिलीज़ होगी. लैटिस एंथैल्पी के बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रिलीज़ होगी.
तो उस पर्टिकुलर चीज़ को टोटल अमाउंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास डेल्टा एच है जो रिएक्शन का, वो हमारे पास सबसे पहले एटमाइजेशन माइनस इलेक्ट्रॉन गेन माइनस लेटिस इंथैल्पी प्लस ऑफ आपके पास आयनाइजेशन इंथैल्पी इंक्लूड होती है. ओके, सो नेक्स्ट इज इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. सो न्यूट्रलाइजेशन एज अ नेम से स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को मिक्स करने से जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है उसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन इंथैल्पी. 1 मोल सब्सटेंस को हमने रिएक्ट कराना है एसिड को बेस के साथ, तो उसमें जो रिलीज होती है वो कितनी है 57.1 किलो जूल पर मोल. ये मैंने पहले भी बता दिया भाई. अगर दोनों जो है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है तो 57.1, एक स्ट्रॉन्ग है एक वीक है तो लेस देन 57.1 रहेगा. नाउ इंथैल्पीज ऑफ फेज ट्रांजिशन. फेज का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर फॉर्म से दूसरी पर्टिकुलर फॉर्म में चेंज होना. फ्यूजन की इंथैल्पी क्या रहेगी, जिस टाइम सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए. वेपराइजेशन की जिस टाइम लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाए. सब्लिमेशन की जिस टाइम एक मोल सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाए, गैसेस में चेंज हो जाए. फ्यूजन मतलब सॉलिड टू लिक्विड चेंज. वेपराइजेशन मतलब लिक्विड टू गैसियस चेंज. सब्लिमेशन मतलब सॉलिड टू गैसियस चेंज. So enthalpy of fusion means it is the amount of heat changes that occur when 1 mole of a solid converted into liquid state. Vaporization means when 1 mole of a liquid converted into gaseous state. Sublimation means when 1 mole of a solid converted into gaseous state. So these are basically different type of enthalpies that we have discussed. Next class we will discuss about second law, entropy, and third law of thermodynamics, and what are the limitations of first law of thermodynamics.